योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. So we are here. We are at 1.15. We started from, in this module, we started from Surah number 1, the whole layout in front of us. Layout समझते हो ना, layout. You have to build a factory on a huge piece of land. Then there's a drawing of the layout. So the layout tells you where is going to be, what is going to be where, and what will be the schedule of construction. And then there is a bar chart. That bar chart shows how the progress will happen over the span of period, a span of time. So layout बोलते हैं उसको. So ये पहला chapter जो है समाधि path is the layout of the entire schema of Ashtanga Yoga. But we started with Ashtanga Yoga because we started with Yama Niyama. So because we wanted to know those tenets first. So that's the correct way to start our study. Now here we are. Patanjali says that Abhyas and Vairagya, these two things, will enable you to stop those vrittis. So last time we saw what Abhyas means. Now today we will enter this sutra, number 15, Drushta, Anushravika, Vishaya, Vitrushnasya, Vashikara, Sandhya, Vairagyam. Okay. Drushta means seen. Seen by you, by others, those which you have not seen, but others have seen. You have not seen Switzerland, but others have seen Switzerland. And they describe it to you. And then you want to go there. Likewise, so many things. The whole entire Laukik world, your material world, your physical world, you cannot experience the whole thing, na? But you hear about this, that, and then तुम्हारा वो क्या बोलते हैं उसको, bucket list बनती है ना? तो bucket list that is all drushta, vishaya, objects which you wish to experience, which you have experienced, which you have liked, and you want to relive this experience. अरे यार ये आल्प्स तो मैं अभी हर साल यहाँ आने का है, बस ये हर साल आने का. So you want to experience it again and again. That is वो ये सब दुष्ट है. तुमने देखे है या तुम्हारे फेलो ह्यूमन बींग्स ने देखे हैं, तो इनके लिए आसक्ति, ये दृष्ट विषय, तृष्णा. इनके लिए आसक्ति मतलब तृष्णा मतलब प्यास. अभी मुझे प्यास, गला सूख रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, देखो. So it's such a natural thing, it's such a natural thing. Because you are born as a human being, you are born in avidya, so raga, dvesh are going to be there. So don't think that you will become vairagi overnight. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. You'll have to work towards it. You'll have to dispute for it. You'll have to do your own disputation and your own tarka, vitarka, arguments, analysis, synthesis. ये सब तुमको करना पड़ेगा. तब जाके वो होने वाला है. वो ऐसे ओवरनाइट नहीं होने वाला, लेकिन या तुम्हारे गुरु ने कहने से नहीं होने वाला, किसी के कहने से नहीं होने वाला कि अरे भाई क्या है, अभी ये सब छोड़ो दुनियादारी, अभी विरक्त बन जाओ, चलो आओ मेरे साथ, कफनी पहन लो, चलो मेरे साथ. ऐसा कुछ नहीं होने वाला.
यू हैव टू, इसलिए पतंजलि का एक आगे बड़ा सुंदर सूत्र है, उसके ऊपर गौर करना। आई टेल इट्स नंबर टू यू। इट इज इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नंबर 15। क्या कोइंसिडेंस है देखो, ये फर्स्ट चैप्टर का 15 सूत्र हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सेकंड चैप्टर का 15 सूत्र इससे रिलेटेड है। वो है परिणामताप संस्कार दुख गुणवत्ति विरोधाच्य दुख में सर्वम विवेकिनी। मतलब जैसे तुम वो यम नियम सब पाठ चलने लगते हो और विवेक जागृत होने लगता है, तो तुमको सभी दुख में लगने लगता है। बिकॉज जो सुख लौकिक लोगों को अच्छा लगता है, तुमको उसकी फ्यूटिलिटी दिखने लगती है, उसका टेम्पोरल स्वभाव दिखने लगता है, ये कितना टिकने वाला है। जो तुम्हारा फेलो ह्यूमन बीइंग उस सुख में पूरा डूब रहा है, तुम्हें ये दिखने लगता है कि ये कितना टेम्पररी है, ये तो अभी हट जाएगा, उसके बाद में फिर दुख आने वाला है। फिर तुम्हें दिखने लगता है कि ये जो सुख 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 चाहिए चाहिए, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, कौन सी कीमत गिन रहे हो उसके लिए। अदरवाइज तुम देखने ही नहीं हो, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आता। यू जस्ट डिजायर समथिंग एंड यू वांट इट। लेकिन उसका वो सुख, उसकी परमानेंसी क्या है, वो सुख की, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है, ये नहीं सोचते। और वो सुख जो मिलने के पहले इतना बड़ा लग रहा था, वो एक्चुअल जब मिलता है, क्या वो सही में उतना बड़ा होता है? नहीं होता। उसके बारे में जो सब सब वर्णन रहता है, तुम नहीं किया होगा, तुम वैसा नहीं पाते। जैसे कई प्रेमी उसके प्रेमिका के लिए इज पिनिंग फॉर हर, और वो मिल गई तो बस सब हो गया, दुनिया मिल गई, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसे। मैं जीता तेरे लिए हूँ, मेरे पूरे प्राण तेरे लिए स्पंदन करते हैं, ये वो सब, इतना प्यार करता हूँ, ये सब दुनिया भर का। और फिर वो मिल जाती है एक्चुअली। हाँ, फैसिनेटिंग नहीं रहता है। इट वर्क्स बोथ वेज, हाँ, मतलब उसके लिए भी इसके लिए। सो तो ये सब जो दृष्ट विषय है, ये दृष्ट विषयों के बारे में तुम्हारा आकर्षण, जो तुमने पाया है, जो तुमने अनुभव किया है, जो तुमने अनुभव नहीं किया, जो नहीं पाया, लेकिन जो पाने की तुम्हें तृष्णा है, प्यास है, ये दृष्ट विषय है। हम्म? आनुश्रवी का विषय मतलब जो किसी ने नहीं देखे, सिर्फ सुने हैं। जैसे ब्रह्मलोक है, निर्वाण है, मोक्ष। किसने देखा मोक्ष? मोक्ष से कोई मिलने आया है तुमको वापस? निर्वाण, ये बड़े बड़े महात्माओं ने, उन्होंने, अभी ज्ञानेश्वर माउली ने संजीवनी समाधि ली है उन्होंने। क्या है तुम्हारे पास प्रूफ? वो आए क्या बाद में बताने के लिए तुमको? व्हाट प्रूफ डू यू हैव? स्वर्ग है, नरक है, कोई आया है वापस स्वर्ग से या नरक से? हाँ, कोई भी रिलीजन हो, हर रिलीजन में ये मान्यताएं हैं। विष्णु लोक है, ब्रह्म लोक है, वहां ऐसा है वैसा है, जन्नत है, दोजख है, जन्नत में तुमको 72 हूरें मिलेगी। ये सब आनुश्रवी विषय है, हर रिलीजन में है, सुने हुए। ये अभी ये यज्ञ करोगे तो ये यज्ञ करते करने से तुम्हारा काल सर्प योग हट जाएगा। अरे किसने देखा है? पहली बात तो वो है क्या है ये भी नहीं मालूम, और वो किसी पंडित ने बोल दिया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, तुम उसको अगर ये तुम 12वीं 13वीं का तुम श्राद्ध करोगे,
तो तुमको वो जो गुजर गया है उसको अच्छी गति मिलेगी। किसने बोला है? कौन बोलता है अच्छी गति? व्हाट इज द प्रूफ यू हैव? और तुम्हारे यहाँ पे कुछ करने से उसको कुछ गतिविधि नहीं मिलने वाली। उसकी गति उसकी उसके कर्मों से मिली है, ऑलरेडी मिल चुकी है। इन द एंड ऑफ द सेशन, वन वन लेक्चर वी स्पीक ऑन कर्म का सिद्धांत। हम लोग वो कर्म का सिद्धांत एक्चुअली क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। एक सेशन हम उसके ऊपर करते हैं, कर्म के सिद्धांत के ऊपर, आखिरी में। तो ये सब सुनी हुई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हैं यार। प्रूफ क्या है? राइट फ्रॉम मोक्ष, कैवल्य की बात कर रहे हो तुम। खुद को क्वेश्चन कर रहे हो। पतंजलि इज सो सो टू द पॉइंट एंड सो कट एंड ड्राइड। यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है। पतंजलि खुद को भी बोल रहे हैं ना कि मैं कैवल्य की बात करता हूँ, मैं स्वरूप अवस्था की बात करता हूँ, कैवल्य की। कैवल्य से कोई आया है क्या वापस तुमको बताने के लिए कि वो ऐसा होता है? लेकिन तुम आस लगाए बैठे हो। पतंजलि ने बोला ना कैवल्य है तो है कैवल्य, कैवल्य चाहिए मुझे। कितने लोग मेरे को आके बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू कम बैक, आई डोंट। वेयर आर यू, वेयर डू यू वांट टू गो? इफ यू डोंट वांट टू कम बैक, वेयर डू यू वांट टू गो? डू यू नो अबाउट द प्लेस वेयर यू वांट टू गो? You just heard about it and you're blindly believing it? तो पतंजलि कह रहे हैं कि उसकी भी आस छोड़ दो। ये जो तुमने जब सुना, दैट इज अनुश्रविक विषय। अनुश्रविक। तुम्हारे गुरु ने तुमको बोल दिया कि अगर तू ये करेगा तो तू स्वर्ग जाएगा या तेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तुझे। और तुम आस लगा दिए, बेटे आस लगा दिए तुमने। पतंजलि कह रहे हैं कि किसी भी चीज की आस नहीं होनी। तुम्हारे गुरु ने भी तुमको अगर एक लॉलीपॉप दिखाया होगा तो तुम्हारे गुरु को तो तुम ब्लाइंडली फॉलो करोगे। पतंजलि सेज नो, आनुश्रविक विषय भी नहीं होना। मतलब दृष्ट तो तुम समझ सकते हो, दृष्ट विषय, वो क्योंकि वो फिजिकल वर्ल्ड के है, मटेरियल वर्ल्ड के है, लौकिक है। लेकिन पारलौकिक जिसके बारे में तुमने सिर्फ सुना है, उसकी भी प्यास नहीं चाहिए। तो दृष्ट विषय आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, वी लगाया उसको प्रीफिक्स। विगत आहे तृष्णा जैची, विगत गॉन, उसकी भी प्यास गॉन हो गई है, गॉन गॉन। वो स्टेट जो है वो वैराग्य की वशीकार नाम की स्टेट है। वशीकार, तुमने वशीकरण सुना है ना? वशीकरण, वशीकरण मंत्र वगैरह लोग बोलते हैं। और फिर वो येलो येलो टैबलॉइड्स रहते हैं, उनमें एड्स आती है कि वशीकरण मंत्र आके सीखो, ये नंबर पे फोन करो और तुमको किसी को जादू टोना करना है, किसी को वश में लाना है। तो वो वाला वशीकरण, वाला वशीकरण। तो क्या होता है, पतंजलि यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भैया अगर तुझे किसी भी चीज की प्यास है तो वो प्यास की जो डिग्री है, उस डिग्री तक तुम उस चीज के वश में रहोगे। ऑब्वियसली ना, इसके लिए कोई मतलब कॉमन सेंस है ये। तुम्हें किसी भी चीज की थोड़ी सी भी प्यास है तो उस प्यास जितना
तुम उस चीज के वश में रहोगे, बिकॉज यू आर वांटिंग इट, इट विल अफेक्ट योर थॉट प्रोसेस, विल इट नॉट? बिकॉज देयर इज अ डिजायर इनसाइड ऑफ यू, आसक्ति है तुम्हारे अंदर उस चीज के बारे में। जैसे तुम्हारा अपना बच्चा जो तुम्हारे, जिसने तुम्हारे कोख से जन्म लिया है, तुम्हारा अपना बच्चा, उसके बारे में तुम्हारी आसक्ति रहती है, उसके बारे में तुम्हारी अपेक्षाएं रहती है, उसने आगे जाके क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे इंसान बनना चाहिए, उसका फ्यूचर कैसे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये सब तुम्हारी आसक्ति रहती है ना? तो उससे तुम्हारा बिहेवियर अफेक्ट होता है या नहीं होता है? अपने बच्चे के लिए तुम्हारा बिहेवियर बिहेवियर कैसे रहेगा, वैसे ही समझ लो। ये जितना अपनापन है तुम्हें कोई भी चीज के बारे में, उतने अपनेपन की डिग्री से तुम्हारा बिहेवियर अफेक्ट होने वाला है। परिणामी नहीं रहोगे, वृत्तियों को चलन मिलने वाला है। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ वृत्तिज? जो क्लेशास। और राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष मतलब एवर्जन। तो तुम्हारे बच्चे को अगर किसी ने तकलीफ दी, तो तुम्हारे मन में उसके प्रति द्वेष निर्माण हो जाएगा, क्योंकि आसक्ति है बच्चे के बारे में, राग है। तो जहां राग है वहां द्वेष आना ही आना है, क्योंकि वो राग के खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो भी जाएगा, उसके प्रति तुम्हारे मन में द्वेष होगा। अब राग और द्वेष अगर रहे मन में, तो वृत्तियों को फ्यूएल, ईंधन मिलने ही वाला है, वृत्तियां चलने ही वाला है, वो चलित रहने ही वाली है। इसलिए ये सूत्र आया है। कोई भी दृष्ट नहीं, अदृष्ट नहीं, किसी भी विषय। नाउ यू, दिस इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ वैराग्य। ये वशीकार वैराग्य जो है ना, ये, क्योंकि वशीकार वैराग्य तुम्हें प्राप्त अगर हो गया, तो इमीडिएटली तुम वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इन समाधियों में चले जाते हो। मतलब वो समाधियां तुम्हारे वश में आती है। हम लोग सब सूत्र थे 15, अच्छा 15 16 के बाद हम लोग एकदम 23 पे गए हैं क्या? ओके, ठीक है। मुझे क्या, और तुमको ना अभी ये जितने सूत्र तुम्हारे कोर्स में हैं, उतने तो तुम करो ही करो, लेकिन बाद में फिर तुमको सब सूत्रों को अभ्यास करना चाहिए। बहुत टाइम है ना लाइफ में अभी, क्या यस करोगे? सर। हाँ, तो करोगे क्या? तो सब सब सूत्रों का अभ्यास करो, समझे क्या? जरूर। हम्म। सो ओके, नाउ सो अंडरस्टैंड दिस, कि वशीकार संज्ञा मतलब नाम, उस वैराग्य का नाम वशीकार है। कि जब कोई भी चीज तुम्हें वश में नहीं कर सकती, कोई भी चीज, दृष्ट रहे या आनुश्रविक रहे, कोई भी चीज तुम्हें वश नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारी उसके प्रति तृष्णा खत्म हो गई है। फिर भले वो तुम्हारे पेट का बच्चा क्यों ना हो, इतनी वो लेवल हाई है ये वैराग्य की। अब लेकिन कैसा है कि वैराग्य जो है, वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट नहीं है। वैराग्य का मतलब अटैचमेंट टू समथिंग एल्स है। बिकॉज योर चित्त कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अटैचमेंट। तुम्हारा चित्त आलंबन के सिवा अस्तित्व में नहीं रह सकता। अगर तुम्हारा चित्त बगैर आलंबन है, तो इसका मतलब
वो निर्बीज समाधि में तुम चले गए हो और चित्त अपने एल्मा मैटर में, प्रकृति में विलीन हो गया है। तुम नहीं रहे, तुम्हारा चित्त नहीं रहा। वो निर्बीज निर्विकल्प समाधि की, निरोध समाधि की अति उच्च, अत्योच्च सुप्रीम स्टेट है, जहां स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाती है। आखिरी का सूत्र कैवल्य हो जाता है, जहां वो स्टेट है वो। तो इसलिए अटैचमेंट, आलंबन चित्त को रहने ही वाला है। सिर्फ ये आलंबन छोड़ के दूसरा आलंबन आ जाता है। पहले मेरे को शराब के बारे में बहुत अटैचमेंट थी, फिर वो डिटैचमेंट हो गई। और मुझे योगा के बारे में अटैचमेंट हो गई, एक एग्जाम्पल के तौर पे। पहले मुझे नॉनवेज की तरफ बहुत अटैचमेंट थी, फिर नॉनवेज से डिटैचमेंट हो गई, लेकिन वीगन से अटैचमेंट हो गई। पहले मुझे पार्टी करना, क्लब में जाना, पबिंग करना, क्लबिंग करने से अटैचमेंट थी, फिर उससे डिटैचमेंट हो गई। अभी मुझे सत्संग से अटैचमेंट हो गई। So detachment from something ensues attachment to something else. अभी ये वशीकार जो स्टेट है, जहां पे दृष्ट विषय, आनुश्रविक विषय, इसके बारे में तृष्णा ही खत्म हो गई है, मतलब डिटैचमेंट आ गया है, तो वो किससे अटैच होगा? किससे अटैच होगा? हम्म ही वो एक तत्व से अटैच होगा, वो पुरुष से अटैच हो जाएगा। वो जो उस चीज से अटैच होगा जो नित्य है, क्योंकि बाकी सब अनित्य है। उस चीज से अटैच होगा जो शुचि है, मतलब जो कभी मलिन हो ही नहीं सकती, विच इज ऑलवेज शिवम। शिवम मतलब पवित्र, जो हमेशा जिसको तुम एडल्ट्रेट कर ही नहीं सकते, जो हमेशा पवित्र रहती है, जो हमेशा के लिए है। और जो हमेशा पवित्र रहती है, मतलब उसमें किसी चीज की आसक्ति निर्माण नहीं होती, क्योंकि आसक्ति निर्माण हुई तो वो पवित्रता मलिन हो गई। तो इसका मतलब वो आप्त काम है, वो अपने में ही तृप्त है, कंप्लीट है। जब भी गायत्री ने वो बोला ना, क्या, निर्वाण षटक, शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। जब ही नहीं, किसने बोला? वसुधा ने बोला। जब वसुधा उससे ही, हाँ, या सो सच्चिदानंद में, अगर मतलब वो अटैच हो जाएगा सच्चिदानंद से। आई एम इटर्नल, आई एम क्लियर कॉन्शियसनेस, एंड आई एम ब्लिस। वो जो ब्लिस है, वो ब्लिस इनबिल्ट है। उस वो ब्लिस जो है वो कंटेनमेंट की ब्लिस है, कि अभी किसी चीज की प्यास ही नहीं बची। जैसे प्यास बुझने के बाद जो तृप्ति का तुम अनुभव करते हो, वह तृप्ति हमेशा के लिए है। तुम्हारी तृप्ति विषय पे डिपेंडेंट है, कि प्यास बुझी तो तृप्त हुए, फिर दूसरी प्यास लगेगी, फिर वो बुझेगी, फिर तीसरी लगेगी। इट इज अनएंडिंग इन्फिनिट चेन। लेकिन यहां वह तृप्ति परमानेंट हो गई है। दैट इज आनंद ऑफ सच्चित आनंद। तो अभी वो दृष्ट विषय से छूट गया, आनुश्रविक विषय विषय से छूट गया, उनसे अटैचमेंट छूट गई, उनसे डिटैच हो गया, और इस सच्चिदानंद को
पाने की आसक्ति में। आसक्ति तो है, डिजायर तो है, लेकिन अभी दृष्ट चीजों का नहीं है, आनुषविक विषयों का नहीं है, अभी वो स्वरूप अवस्था का है। कि ये जो चौथी अवस्था है, ये तुरीय अवस्था, जो मेरे ही अंदर है। अरे लेकिन पूरी जिंदगी में मैं जागृति, स्वप्न, निद्रा, ये तीन में बस खत्म, लाइफ, लाइफ ओवर। ये फोर्थ स्टेट कब पता चलेगी मुझे, लाइफ खत्म होने के बाद? नहीं, ये तुरीय अवस्था की आसक्ति, अटैचमेंट टू दैट। उपनिषद भी कहता है, यमवैश्य वृणुते तेन लभ्य। पतंजलि आगे जाके कहते हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। तुम्हारे उससे चाह, तुम्हारी उससे चाह, तुझे पाने का संवेग, the intensity will decide whether he will reveal himself unto you or not. नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम वैश्य वृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। ये कितनी भी बातचीत करके जो मैं टॉक देता हूं ना, उससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रवचन देता हूं मैं इधर जा उधर जाके, कोई फायदा नहीं है मेरा। न मेधया, मेरा आईक्यू कितना भी हाई रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बहुना श्रुते ना, मेरे जैसे अनेकों को सुनो, इसको सुनो, उसको सुनो, ओशो को सुनो, जय कृष्णमूर्ति को सुनो, रमन महर्षि को सुनो, और फिर वो तुम्हारा सदगुरु को सुनो, रविशंकर को सुनो, किस, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो किसको फायदा होगा? यम वैश्य वृत्ति तेन लभ्य। सीकर, तुम्हारे सीकिंग की इंटेंसिटी क्या है? जो आसक्ति तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे पेट के बच्चे के प्रति जो आसक्ति है, हाँ, अब एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए जान दे देगी, उतनी इंटेंसिटी से क्या तुम चाह रहे हो उस तुरीय अवस्था को पाने को, उस चतुर्थ अवस्था को पाने को? तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वा। वो आत्मा उसको रिवील करेगी, आत्मा को आत्मा रिवील करेगी। तब तक नहीं होगा। तो वैराग्य का मतलब डिटैचमेंट नहीं है, और वैराग्य का मतलब सीरियसनेस भी नहीं है। अगर तुमने ऐसा कल ऐसा कोई एकदम सीरियस लंबे चेहरे वाला ऐसा ऐसा कोई वैरागी देखा ना, तो उससे दूर भागना। इडियट्स रहते हैं वो। अरे वैरागी बोले तो कबीर जैसा, जो बीच बाजार में नाचेगा, कबीर जैसा, जो कहेगा कि जब तू था तब मैं न था, तू पायो मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे द्वै न समाये। तो कुछ नहीं दिख रहा है। वो बोल रहा है कि जब तू था तब मैं नहीं था, अब तू उतर गया मेरे जहन में तो मैं ही नहीं हूं। क्योंकि ये जो अपनी प्रेम की गली है ना, ये बहुत नैरो है। इसमें से दो लोग नहीं जा सकते एक टाइम पे, एक तो तू रहेगा, नहीं तो मैं रहूंगा। अब मैं तो गया, अब बस तू ही तू है। दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ सीकिंग। दैट इज दैट इज द लेवल ऑफ वशीकार। अब ये मेरा अगर अटैचमेंट हो गया उससे, तो कौन सी चीज मुझे वश में कर सकती है? कौन सी चीज मेरे वृत्तियों को चालना दे सकती है? यहाँ पे बात चित्त वृत्ति निरोध की हो रही है, यहाँ पे बात योग की हो रही है। कौन चलित करेगा? किस में ताकत है मेरे वृत्तियों को चलित करने की?
That is the meaning of this beautiful sutra. Drishta Anushravika Vishaya Vitrushnasya Vashikara Sanya Vairagyam. उसके बाद में सर, हाँ बोलो आई हैव अ डाउट सर. बोलो सारिका सारिका सर, इसमें हाँ चित्त वृत्तियां क्या है वो दिया हुआ है सर, बट व्हाट इज चित्त अकॉर्डिंग टू पतंजलि? मतलब चित्त क्या है, इसका आत्मा से क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन? मतलब हम चित्त की बात करते हैं, बट व्हाट इज चित्त? सारिका तू पहले लेक्चर से थी नहीं क्या? सर पहले लेक्चर में मैं थी नहीं सर, मतलब मेरे पास आया ही नहीं था लिंक. Oh, आई हैव जॉइन लेटर. so you should get that ओके recording वो लो ओके क्योंकि we डिस्कस. started with that. ओके That is the first सूत्र ना. लेकिन तुमको एक सिनॉप्सिस बता देता हूं मैं. तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस 3 रोल्स करते रहता है. एक तो वो निर्णय लेता है कुछ ना कुछ, है ना, ये सही है ये गलत है, मुझे ये करना है मुझे वो करना है. तो उस निर्णय लेने का जो फंक्शन है वो जब कॉन्शियसनेस करते रहता है हम उसको बुद्धि बोलते हैं. फिर वही कॉन्शियसनेस आई मी माइंड करते रहता है ना. अभी ये मेरा है, मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा. तो वो फंक्शनैलिटी जो है कॉन्शियसनेस की उसको हम अहंकार बोलते हैं, राइट. और फिर उसको ऑल द टाइम 24/7 5 सेंसरी ऑर्गन से फीड मिलते रहता है ना. 5 पोटेंशियलिटीज है हमारे पास. द पोटेंशियलिटी ऑफ सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, है ना. तो ये पोटेंशियलिटीज से उसको फीड मिलते रहता है. तो वो फिर वो पूरा एनालाइज करते रहता है एक लेवल पे, और उसके इस हिसाब से वो अपने कमांड देते रहता है. कमांड काय के थ्रू देता है? 5 एक्शन ऑर्गन्स है ना हमारे. हस्त पाद, पाद पाणी उपस्थ वायु वाणी, ये सब. तो वो 5 पोटेंशियलिटीज है कर्मेंद्रियों की, बराबर ना. अब ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 5 और 5, ये 10 हो गए. ये 10ओं को नियंत्रित करने वाला एक जो फैकल्टी है, जो फंक्शनलिटी है कॉन्शियसनेस की, उसको हम मन कहते हैं. तो ऐसे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 3 अंतःकरण, मतलब मन, बुद्धि और अहंकार. ऐसे ये 13 हो गए, ठीक है ना. अब ये 13 जो डिजाइन हुए हैं, इनका डिजाइन किस लिए हुआ है? तन्मात्राओं के लिए हुआ है. तन्मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध. प्राणी को शब्द का अनुभव करना है, इसलिए उस हिसाब से ये पंचीकरण हुआ. पंच महाभूतों का, पंच इंद्रियों का, पंच ज्ञानेंद्रियों का, पंच कर्मेंद्रियों का. फिर उसको उसको स्पर्श अनुभव करना है, फिर उसे रूप देखना है, उसे रस चखना है, उसे गंध लेना है. तो ये 5 तन मात्राएं हैं, इनके साथ ही ये संघात रहता है. तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और 3 अंतःकरण, ये टोटल हो गए 18. ये 18 मिलाकर चित्त है. ये 18 की पोटेंशियलिटी जो तुम्हारे अंदर है अभी काम कर रही है, वो अभी इस पल जो तुम मुझसे बात कर रही हो. तो तुम कौन कौन बात कर रहा है मुझसे? सारिका. कौन बात कर रहा है मुझसे? सारिका बात कर रही है. सारिका कौन है? सारिका का कॉन्शियसनेस बात कर रहा है. वो कॉन्शियसनेस के इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो ये सारे 18 इंग्रेडिएंट्स हैं. थैंक यू सर. ओके. यस Yeah, this is Sankhya. This is Sankhya. This is Sankhya. सर. Okay. हाँ, Sankhya philosophy, दर्शन. Because yoga is based on Sankhya. ठीक है. और ये जो 18 का संघात है, ये 18 के संघात के सेंटर में क्या है जिसके लिए ये 18 एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे आए हैं?
किसके लिए इकट्ठे आए, क्यों इकट्ठे आए, क्यों एक साथ है? तो वो जो है, वो तत्व जो है, वो पुरुष है। ये 18 तत्व प्रकृति के हैं, और वो जिसके लिए ये संघात बना, वो पुरुष है, वो तुम्हारा आत्मन है, यस। जो कि 18 से टोटली अलग है, लेकिन हम उसे अलग नहीं कर पाते। वो जो 18 है, वो 18 में ही तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसी के चक्कर में वही तुमको घुमाते हैं, वही वृत्तियां हैं। जब तक कि वो रुकेगी नहीं, तब तक कि जिसके लिए वो काम कर रही है उसका दर्शन नहीं हुआ, वो छुपा रहेगा। उस तो झंझावात जो है, वो टाइफून जो है, चक्री बादल जो जिसको बोलते हैं, हम्म। उसके बीच का उसका सेंटर दिखता नहीं है, जब तक कि वो रुक नहीं जाएगा सब। ओके, सो दैट इज ऐसा। हाँ, बोलो शशि। Sir, sir, I wanted to ask you that why this whole drama? मतलब पहले तो हम इसमें घुसे हैं, फिर उसके बाद उससे डिटैच हुए, वशीकार करे, फिर वापस पुरुष को देखे, जबकि सब कुछ अपने अंदर है. So why is it so? Why? दैट Why इज is that? टू मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, टू मेक लाइफ इंटरेस्टिंग, अदरवाइज इट विल बी सो बोरिंग। तो अरे, सब यू नो, सुनना सुनना शशि, बहुत सुंदर सूत्र है इसके ऊपर पतंजलि का, कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। सेम सवाल का जवाब दे रहे हैं पतंजलि। तुम उनसे पूछता हो कि अरे बॉस, ये काय को है ये सब, ये जब मैं हूं अंदर, वो तो यार चैन से रहूंगा, ये क्या सब झमेला खड़ा करके रखा है संसार। दृश्यम, दृश्यम कहा उन्होंने, ये जो दृश्यम है किस वास्ते है? तो वहां पे वो सूत्र लिखा है उन्होंने, पी की प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। शील मतलब, प्रकाश मतलब सत्व, प्रकाश क्रिया मतलब रजस। अभी उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं अभी, लेकिन समझ लो ओवरऑल। और फिर स्थिति मतलब तमस। तो सत्व मतलब प्रकाशित करना, कि क्रियान्वित करना और स्थितिशील रखना, ये जिसका स्वभाव है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम। और भूत मतलब पंचमहाभूत, और ये सब एकादश इंद्रिय, और वो अंतःकरण, ये जिसका स्वरूप है। और भोग अपवर्गार्थम, और भोग देना, और फिर उसी से निकालना, निकलना, मुक्ति का अनुभव करना, ये जिसका प्रयोजन है, प्रयोजन ही है वो। वह दृश्य है। भोग मतलब भोग, उसमें एंटेंगलमेंट इन द वृत्ति। और अपवर्ग मीन्स निकलना बाहर। That is the thrill. The escape is the thrill. The entanglement too is. That's the ball game. उसको लीला कहो, उसको कुछ भी कहो। when you're saying this, sir, only one scene is coming in my mind. कि या देयर इज अ डायरेक्टर टू द मूवी जो आपको बोल रहा है फुल कन्विक्शन के साथ जाओ, अपना प्रेल करो रोल, अपने डायलॉग्स बोलो, सब कुछ बोलो, but don't get attached to anything, come back down back and sit nice like you're nobody. So but now, yeah, so far so good, लेकिन शशि, डायरेक्टर कोई है ही नहीं, तुम ही डायरेक्टर हो। तुमने ही तुम ही डायरेक्टर हो, तुम ही एक्टर हो, तुम ही but there प्लेयर is हो। one superpower, sir. We all know that we felt it, we sense it, that there is one power which is there, which is running everything. हाँ, लेकिन वो कैसा है, वो पावर कैसी है, वो पावर कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, वो पावर का स्वरूप क्या है, वो जब तक कि तुम अनुभव नहीं करोगे उसको तुम बोल नहीं सकते। मुंडक उपनिषद में, मुंडक नहीं, मांडुक्य में एक
बड़ा सुंदर वर्णन है उसका ब्रह्म का। वो बोलते हैं कि अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम। तो वो गुरु उसको बोल रहा है शिष्य को कि ये अदृष्टम है, तुम उसे देख नहीं सकते, वो तुम उसको व्यवहार में नहीं ला सकते। तो तुम ये जब भगवान के साथ व्यवहार करते हो ना, कि तू मेरे को ये दे, मैं तेरे को चढ़ावा करूंगा, 21 नारियल वगैरह दूंगा वगैरह, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम उसको वो उस शक्ति को तुम, उस तत्व को तुम व्यवहार में नहीं ला सकते। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एंड हाँ, उसको तुम व्यवहार में नहीं ला सकते। वो ग्राह्य नहीं है, वो किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। अगर ग्राह्य नहीं है तो उसका लक्षण क्या बताओगे? ग्राह्य नहीं है तो क्या लक्षण बताओगे? अगर लक्षण ही नहीं मालूम तो उसका चिंतन क्या करोगे? और उसके बारे में बोलोगे भी क्या? अव्यपदेश्यम, उसको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। मतलब अदृष्टम, अव्यवहारम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, बोले सर करना तो क्या करना फिर? तो वो गुरुजी बोलते एकात्म प्रत्यय सा, वो तू बन सकता है, क्योंकि तू वही है, तू ही डायरेक्टर है। तेरे को वो अनुभव करना कि मैं डायरेक्टर हूं, बस तेरा रोल खत्म। फिर तू एंजॉय कर, फिर दोबारा आ अगले कल्प में, फिर से सेम गेम खेल, फिर छूट, फिर दोबारा, ये चल रहा है। तो काय को इतना रोना धोना कर रहे हो? ये तो गेम है। छूटे तो छूटे, अच्छा है, नहीं छूटे तो नहीं छूटे। There is no other explanation. And it never began. It has always been there. It has always been there. It is very difficult for us to conceive this idea. क्योंकि हमारी जिंदगी ना, पूरी जिंदगी हमारी एंड और फिनिश के मायने में चलती है। पैदा हुआ, पाला बड़ा, मर गया। हमारे लिए हर चीज, एक झाड़, एक पौधा, बीज बोया, पैदा हुआ, रहा, मर गया, एवरीथिंग हैज व्हाट इज बर्थ एंड डेथ साइकिल। Our whole thinking is conditioned by the birth and death cycle. So it is very difficult to imagine for a human mind that something is there which was never born. And because it was never born, it can never die. It has always been there. This is it. So you have always been there. You, Shashi, the director, you have always been there. There is no question of you birth, taking birth and dying. तो ये तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, यही तो लीला है। एंजॉय करो। और कुछ? हाँ। नहीं सर, अब एंजॉय करेंगे। I'll write the script that I want now. I am the director. You exactly, you said it. It is a liberating sutra. कोई दूसरा डायरेक्ट नहीं कर सकता, किसी को अधिकार ही नहीं है तुमको डायरेक्ट करने का। तुम तो फंस गए हो। ये सब बतंगड़ में, संस्कारों के बतंगड़ में, इसके द मोमेंट ब्लडी यू आर बॉर्न, वो लेबल लग जाता है मत्थे पे, हिंदू है, मुसलमान है, जिस घर में पैदा होते हो। व्हाट रविश! वहीं से सब अविद्या, दिस इज अविद्या। आगे जाके हम सूत्र पढ़ने वाले हैं वो क्लेशों का, इन द नेक्स्ट मॉड्यूल। एक एक मॉड्यूल करेंगे ना, तुमको पूरा पिक्चर ऐसे क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। अविद्या में पैदा होते हैं, अविद्या में जीते हैं।
इसलिए वो इतनी सुंदर श्रुति है। हाँ बोलो। So sir, then everything is okay, right? तुम पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, तुम हाँ शादी करो बिल्कुल, तो ठीक, क्योंकि नहीं करो तो ठीक, तुम बच्चे पैदा करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, everything is okay because it's just liberation, it's just freedom. Why are we've just programmed our life very this thing, इतने से इतना, इतने से इतना, ये नहीं करा तो सामाजिक रूप से सही नहीं है, मेंटल रूप से सही नहीं है, so then everything is okay. अगर यूनिवर्स देख रहा है, समझो यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के नजर में ये कोई कुछ भी तुम ही मायना नहीं रखते यार। ये कहाँ, ये तुम्हारे उसूल और आदर्श, मेरे उसूल मेरे आदर्श, वो यूनिवर्स के मायने में दे डोंट एग्जिस्ट। और जो हमारा कर्म का सिद्धांत है वो वही बता रहा है हमें। कर्म का सिद्धांत बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। उसको तुम रिफ्यूट करो। पहले तो उससे तुम आर्ग्यू करो कि नहीं ये गलत है करके, और फिर तुम प्रूव करो कि ये क्यों गलत लग रहा है तुमको, और फिर तो जाके तुम मानोगे। तो हमारा शास्त्र ऐसा है ही नहीं। पतंजलि भी कहते हैं कि क्वेश्चन करो पहले, डोंट टेक एनीथिंग ऑन ब्लाइंड फेथ, आस्क क्वेश्चंस, चैलेंज इट, खोज करो, अन्वेषण करो, इंक्वायरी। जहां पे इंक्वायरी नहीं है वो ज्ञान तुम्हारे कोई काम का नहीं है। इंक्वायरी करनी होगी। You see? सो सूत्र नंबर 16 जो है इसके बाद का, अभी ये सूत्र में तो हमने देखा कि वो जो योगी है ये वशीकार लेवल का, उसका दृष्ट और आनुषविक सब विषयों के बारे में उसकी तृष्णा समाप्त हो गई है, क्योंकि अभी उसे सिर्फ सच्चिदानंद की तृष्णा है। लेकिन है उसके नेक्स्ट जो स्टेट है, तत्परम पुरुष ख्याते हैं गुणमय तृष्णा, उसने वो सच्चिदानंद को चख लिया अभी। क्योंकि वो ये वशीकार के एबिलिटी के कारण उसने वो जो स्टेजेस है, सबीज के 4 स्टेजेस है जो आगे सब सूत्रों में दिया है, और एक निर्बीज है। तो सबीर के 4 वितर्क विचार आनंद अस्मिता, ये उसने क्रॉस कर लिए, बिकॉज उसको वशीकार उसके वो उसके हाथ में आ गया इसलिए। और ये 4 क्रॉस करने के बाद में उसको निरोध समाधि मतलब निर्बीज की उसको झलक मिल गई। मतलब वो तुरीय अवस्था, जो सच्चिदानंद अवस्था, तुरीय अवस्था, उसको उसने चख लिया। अमृत अमृत चख लिया उसने। अब अमृत चख लिया तो उसकी जो गुणों के बारों की जो तृष्णा है, गुणों के लिए जो तृष्णा है वो भी अभी खत्म हो गई। गुणों की तृष्णा मतलब क्या? इस जिंदगी के बारे में तृष्णा। वो मरना नहीं चाहता अभी तक, वो भी लाइफ को पकड़े रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो तुरीय अवस्था का उसने अनुभव नहीं किया है। और वो जानता है कि ये विंडो बंद हो जाएगी तो फिर दोबारा कब विंडो आएगी मेरे नसीब में, मानव जाति की, और फिर ये मौका कब मिलेगा, ये योग के मार्ग पर चलूंगा नहीं चलूंगा नहीं पता। इसलिए मेरे को ये अमृत इस जीवन में चखने के पहले मेरे को मरने का नहीं है। वो उसकी आसक्ति है इसको, शरीर को चिपक के रहने के लिए। तुम्हारी जैसी अपने जैसी आसक्ति नहीं है शरीर को चिपक के रहने के लिए। ये नहीं हुआ वो नहीं होगा, अभी नातिन नहीं देखी, अभी नातिन देखी तो उसके उसकी बच्ची पण तू नाही बघितला अजून, अनएंडिंग, तदपि न मुंचती आशा पिंडम। तो गुणों के बारे में उसकी आसक्ति और गुणों के बारे में हमारी आसक्ति, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अब उसने वो चख लिया सच्चिदानंद। अब उसको पता है कि अब ये गुणों की आसक्ति इज ए बैरियर नाउ। अब ये शरीर का लय होना चाहिए पंच महाभूतों में। वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम कृतो ओम स्मर कृतम स्मर, ओम स्मर कृतम स्मर, विश्वम ईशावास्य उपनिषद।
वायुर अनिलम, अभी ये जो वायु, ये मेरे प्राण, अनिलम वैश्विक प्राण में मिल जाने दो, भस्मांतम शरीरम, अब ये शरीर भस्म हो जाने दो, अब मैं अमृत बन गया हूं, अब मैं अमृत बन गया हूं। ऐसा ये सूत्र है। ये इसको परवैराग्य कहा है। मतलब पहला वाला जो वशीकार वैराग्य है, और ये दूसरा जो है तत्परम, वशीकार से भी पर, सुपीरियर, अल्टीमेट। पुरुष ख्याते है, ख्याति मतलब knowledge, irrefutable knowledge of the existence of the fourth state, irrefutable knowledge of the existence of Satchitananda state, because he has tasted it firsthand. It is not anushravik or anything. That is ख्याति। उसकी ख्याति हो गई है, उसे ख्याति हो गई है। अब उसके बारे में कोई सुनाया और कुछ कोई 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 मायना नहीं रहता। अब उसको, मेरे को खुद को ख्याति हो गई है, पुरुष ख्याति। गुणों में तृष्णा, गुणों की भी तृष्णा खत्म हो गई। अब जाने दो ये शरीर भस्म हो जाने दो, अब मटका फूट जाने दो, तो मटके के अंदर का आकाश, पहले तो वो खाली हो गया है मटका, अभी खाली मटके के अंदर क्या है? आकाश है। अब बस मटका ही बाधा है, मटका फोड़ दो, अंदर का आकाश महा आकाश में विलीन हो जाएगा। करना तो कुछ है नहीं, सिर्फ मटका फोड़ना है, त्रिगुणों का लय होना है। गुणमय तृष्णा, सो ब्यूटीफुल। I think you make it sound very beautiful. It is, you see, it is beautiful. That's why, that's why it sounds, one second, that's why it sounds, सुनने में ही ब्यूटीफुल है, तो एक्सपीरियंस करने में तो क्या ही होगा। yeah, yes. In fact, जो जाना, इनफैक्ट ये जैसे कि मैंने कहा, हमेशा बोलता हूँ कि दिस इज अ रोड मैप। ये हमें रोड मैप दिया है पतंजलि ने, ये उसके बीच में सब ये माइलस्टोन्स दिए हुए हैं। तो ये लगना है हमें पाथ पर। तो इसलिए सूत्रों का द होल बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इनफैक्ट कैवल्य पाठ, जो ये विभूति पाठ जिसमें ये सब सिद्धियां हैं, तो पतंजलि ने सजेस्ट किया है हमें कि भाई तुम एक दो तीन तो भी माइनर सिद्धियां क्यों ना हो, एक्सपीरियंस कर लो, ताकि तुम्हारा इस शास्त्र पर विश्वास जो है वो दृढ़ हो जाए। यू विल नॉट डाउट दिस शास्त्र। तो एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस जब तक कि अंतरंग साधना शुरू नहीं होती तब तक हो नहीं सकता। धारणा ध्यान समाधि जब तक शुरू नहीं होती, यम नियम वो पादाने हैं ना। द नेक्स्ट पादान इज पहले से ज्यादा सूक्ष्म है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सिर्फ रोड मैप। आपको सिर्फ चलना है उस रोड मैप पे, और चलते चलते बीच बीच में तुम्हें ऑर्किड्स लगेंगे, ये ऑर्किड लगेगा, वो ऑर्किड लगेगा, उसका लुत्फ उठाना है और आगे चलना है। ठीक, चलो हम लोग अभी आज यहाँ रुकते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम, यस 56, एंड देन नेक्स्ट टाइम वो ईश्वर परिधान शुरू होगा। तो पतंजलि का ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है? एब्सोल्युटली सेक्युलर, अमेजिंग अमेजिंग। इनफैक्ट ओशो ने योग सूत्रों पे 5 खंड लिखे हैं, ओशो ने योग सूत्रों पे। और ओशो का स्टेटमेंट है कि व्हाट पतंजलि हैज डन इज बियॉन्ड ह्यूमन माइंड। ओशो जैसा आदमी कह रहा है कि he fails to understand
how Patanjali could have done this. Okay? So we're very lucky to be studying these sutras. Now I Sir, will, even if we look at, I've not read much text, but even Bhagavad Gita and Patanjali Yoga Sutra are also very different in their perspective, right? actually, yes, on this, many a stalwarts, many a scholars have said कि अगर गीता ये ब्रह्म विद्या का उपपत्त्यात्मक अंग है तो योग सूत्र प्रायोगिक अंग है, मतलब थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो ब्रह्म विद्या अगर साइंस है तो ब्रह्म विद्या की थ्योरी गीता है, लेकिन थ्योरी हम क्लासरूम में पढ़ते हैं और लेबोरेटरी में जाके फिर हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। तो योग सूत्र से लैब में एक वर्कबुक रहता है लैब में, है ना? तो योग सूत्र इज दैट वर्कबुक। और जैसे फिजिक्स सीखना है तो थियरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के ही वो साइंस हम सीख पाएंगे, वो कंप्लीट होगा। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गीता एंड योग सूत्र। सर, योग सूत्र में ईश्वर का 2 या 3 सूत्र है, एंड भगवत गीता इज कंप्लीटली ईश्वर, लाइक फ्रॉम द वी विल स्टार्ट टू कम टू द दैट। एंड इट इज ओनली ईश्वर, और वो है तो या सो दैट वे द टेक्स्ट इज लिटिल डिफरेंट। We will talk about it next time, next session. Next session is on Ishwar. Okay? ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।